Today we are going to start lesson 2 from your subject English. The Wolf and the Crane. Our second chapter is The Wolf and the Crane. It is a story. This story teaches us that we should never believe a weak person's promise. We should always avoid this person who is weak and narrow-minded, because they never help other person. They always want to do their work only. आइए स्टार्ट करते हैं. This is a fable of a wolf and a crane. This story teaches us that we should never believe a wicked person's promise. Let's read this interesting story and enjoy it. This is a fable. Fable means कहानी. Fable means कहानी. This is a fable of a wolf and a crane. यह एक भेड़िया और सारस की कहानी है. This story teaches us that we should never believe a wicked person's promise. और ये कहानी हमको बताता है कि हमें कभी भी दुष्ट व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. Let's read this interesting story and enjoy it. आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं. ध्यान देंगे रीडिंग पे. वर्ड टू वर्ड रीडिंग किया जा रहा है. आप वर्ड टू वर्ड माइंड करेंगे कि किस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है और उसकी क्या मीनिंग है. तो माइंड इट. आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान देंगे. Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. Suddenly, he found a big dead animal. Suddenly, he found a big dead animal. He at once jumped upon it and began eating hurriedly. He at once jumped upon it and began eating hurriedly. The wolf was in such a haste that while eating, a bone got stuck. A bone got stuck in his throat. A bone got stuck in his throat. Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. एक बार एक भेड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर टहल रहा था. इधर उधर टहल रहा था. Wandering means टहलना, घूमना. Suddenly he found a big dead animal. Suddenly अचानक से उसको मरा हुआ एक बड़ा जानवर मिल गया. अचानक से उसको मरा हुआ एक बड़ा जानवर मिल गया. He at once jumped upon it. और उस पे झपट पड़ा. उस पे वह तुरंत. At once means क्या होता है? तुरंत. वह तुरंत उस पे झपट पड़ा, कूद पड़ा. And began eating hurriedly.
और तेजी से उसको खाने लगा। द wolf was in such a haste, भेड़िया बहुत ही जल्दबाजी में था। दैट while eating, जब वो खा रहा था वो बड़ी जल्दबाजी में खा रहा था। भेड़िया बहुत ही जल्दबाजी में खा रहा था। A bone got stuck in his throat, और एक हड्डी उसके गले में फंस गई। एक हड्डी उसके गले में फंस गई। The wolf tried hard to bring the bone out. The wolf tried hard to bring the bone out, but failed miserably. But failed miserably. The greedy wolf even tried to swallow. The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating, but did not succeed. The wolf tried hard to bring the bone out, but failed miserably. The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating, but did not succeed. The wolf tried hard. उसने बड़ा ही प्रयास किया। To bring the bone out, उस हड्डी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रयास किया। But failed miserably, लेकिन बेचारा फेल हो गया, असफल हो गया। The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating. वो लगातार खा करके उसको वो उसको अंदर का लेना चाह रहा था। पेट में सोच रहा था कि पेट में चला जाए जल्दी जल्दी खाने से। वो हड्डी अंदर चली जाए, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। हड्डी अंदर नहीं गई, वो गले में ही फंसी रह गई। एट लास्ट he went to a crane that lived by the river. At last he went to a crane that lived by the river. The wolf said to the crane, a bone has got stuck in my throat while eating. Please extract it out with the help of your long neck and beak. You will be well paid for this obligation. At last, अंत में, he went to a crane, वो एक सारस के पास गया, that lived by the river, जो कि नदी के पास रहता था। The wolf said to the crane, भेड़िए ने crane means सारस, a kind of bird, एक प्रकार का पक्षी होता है। The wolf said to the crane, भेड़िए ने सारस से कहा, a bone has got stuck in my throat while eating. जब मैं खा रहा था तो एक हड्डी हमारे गले में फंस गई है। प्लीज एक्सट्रैक्ट इट आउट, कृपया इसको बाहर निकालिए। विद द हेल्प ऑफ योर लॉन्ग नेक एंड बीक, अपने इस लंबे गर्दन और चोंच की सहायता से इसको बाहर निकाल दीजिए। यू विल बी वेल पेड फॉर दिस ऑब्लिगेशन, इस कार्य के लिए हम आपको जो मांगेंगे आप, हम उसको देंगे। आपको बहुत कुछ देंगे अगर आप हमारा ये हड्डी हमारे गले से निकाल देते हैं। The crane agreed. He inserted his long beak inside the wide open mouth of the wolf. The crane's long neck helped him in reaching down the throat and pulling the bone out. After accomplishing the work successfully, the crane said, now pay for my service.
नाउ पे फॉर माई सर्विस। द क्रेन एग्रीड, सारस तैयार हो गया। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वुल्फ। वुल्फ के द्वारा जो बड़ा मुंह खोला गया था, उसने उसके अंदर अपनी चोंच को, लंबी गर्दन को उसके अंदर डाल दिया। इंसर्टेड मीन्स क्या हुआ, अंदर डाल दिया। द क्रेन्स लॉन्ग नेक हेल्प्ड हिम इन रीचिंग डाउन द थ्रोट। क्रेन की लंबी गर्दन ने उसको गले के अंदर तक चोंच को ले जाने में मदद की, हेल्प की। एंड पुलिंग द बोन आउट, और उस हड्डी को बाहर निकाल दिया, और उस हड्डी को बाहर निकाल दिया। आफ्टर एकम्प्लिशिंग द वर्क सक्सेसफुली, इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के बाद, द क्रेन सेड, सारस ने कहा, नाउ पे फॉर माई सर्विस, अब मेरे कार्य के लिए जो देना है उसको आप मुझे दे दीजिए। The cunning wolf laughed. Ha ha ha! Payment for your service? You should thank me for allowing you to bring out your head safely from the mouth. The cunning wolf laughed. Ha ha ha! Payment for your service? You should thank me for allowing you to bring out your head safely from the mouth. The cunning wolf laughed. वो धूर्त भेड़िया हंसा। पेमेंट फॉर योर सर्विस, आपके कार्य के लिए पैसा। यू शुड थैंक मी, आपको मेरा धन्यवाद देना चाहिए। यू शुड थैंक मी, आपको मेरा धन्यवाद देना चाहिए, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। फॉर अलाउइंग यू टू ब्रिंग आउट योर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह से आप अपना जो चोंच है, गर्दन है, आप बाहर निकाल लिए, इसके लिए आप मुझको धन्यवाद दीजिए। मतलब ये कि अगर वो चाहता तो उसको उसकी गर्दन को अपने मुंह में ही बंद कर लेता। तो ऐसा न करने का ही वो जो है उनको रिवार्ड बता दिया कि हमने ऐसा नहीं किया आपके साथ, कि हमने आपकी गर्दन को अपने मुंह में बंद नहीं किया। दैट्स ऑल, यही है स्टोरी। स्टोरी में बताया भी गया कि हमें दुष्ट, जो कि वुल्फ अ विक्ड एनिमल, वुल्फ क्या होता है, ये दुष्ट जानवर होता है, धूर्त जानवर होता है, और इसकी मदद करने वाला सारस सीधा साधा, उसने जो है इसकी बात को माना, लेकिन अपनी बात से हट गया वुल्फ। इसीलिए कहा जाता है कि दुष्ट की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस लेसन को आप केयरफुली रीड करिए, वर्ड टू वर्ड इसको रीड करिए, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।